Hello student, Renu is continue with civics of class 7 chapter 2. I am here in front of you to telling you the topic functioning of democracy, how the democracy works. First I will tell you the meaning of word democracy. What is the meaning of democracy? It's a term. The rule, India is a democratic country and all people are ruled by the people and we elect the people. Government run by people, for the people and by the people. So in a good way, the democracy, or we can to say equality for all, is most important theme of functioning of democracy. In India country, all are equal in the eye of constitution and we can say law. हमारे सबको एक साथ equal rights are given to every person and equal duties we are going to follow. So day by day we are looking that equality in Indian democracy can be seen everywhere. आप कहीं भी चले जाएं, all rights are same for all. ये नहीं है कि इसके लिए ये right है, उसके लिए वो right है, nothing else. All are equal and functioning of government is equal to all. So we are going to discuss that what is the main pattern of Indian democracy. In Indian democracy, equality is main theme. As per equality, we have given right, universal adult franchise. Earlier it was not mandatory or not given to all. After then, due to great efforts, it was passed in 1950, right to vote. We get freedom in 1947, but we get universal adult franchise in 1950. So equality means every individual in every either he belong to different race, caste, religion or reason, all are equal in the eye of law and judiciary as well as constitution. What is constitution? A set of rules or regulation is known as constitution. So all are equal in the eyes of as per their base of race, caste and reason. Okay, these are tribes or background people, either they are SC, ST, all are equal. So equality according to race, caste, place, gender. You can go to playgrounds, markets, temples, कहीं भी जाते हैं, schools, कोई भी आपको नहीं रोकेगा because all are having equal rights. It is first through law, second through government program. Universal adult franchise after the manhood suffrage, ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था. उसके स्लोगन के बाद जो पॉवर्टी थी, पॉलिटिकल इक्वलिटी थी, फ्रीडम और जस्टिस थी, इन सब चीज़ों को साथ लेकर राइट टू वोट की डिमांड की गई. अर्लियर हमें ये राइट टू वोट फाइंड नहीं था. आफ्टर देन इट वाज वन ऑफ द मेजर डिमांड फॉर एवरी सिटीजन दैट इट रिमेन लिमिटेड सर्टेन सेक्शन ऑफ सिटीजन and was not granted to every adult citizen in demand as demanded. So in 19th century this universal adult franchise was passed by the government. Took various hard steps. The age for voting was fixed 25. Earlier one amendment was done and it was fixed at 18 years. Amendment means सुधार, थोड़ा सा चेंज करना, कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ को थोड़ा चेंज करना, उसका मॉडिफाई रूप कहलाता है अमेंडमेंट. ओके, इतना क्लियर हो गया बेटा. पहले ये 25 ईयर्स एज थी वोटिंग एज, अब 18 ईयर्स से फिक्स कर दी गई. एनी इंडियन रिस्पेक्टिव सेक्स, कास्ट, स्टेटस, रिलीजन, रेस, किसी से भी बिलोंग करता है, आइदर ही इज़ पुअर और रिच, एवरीवन हैव राइट टू वोट. सबको वोट देने का अधिकार है. सो दिस इज़ द मेन प्रिंसिपल दैट वन वोट वन वैल्यू, वन वोट वन लॉ, वन पर्सन वन वोट, और उसकी सबकी बराबर वैल्यू है, चाहे वो किसी गरीब का वोट है और चाहे वो किसी अमीर का.
So universal adult franchise is most important thing. Due to that we get our right to vote. So next, in India country, when we get right to vote, now what happen? Election process is there, election system is there. Indian election system is holding intervals, regular intervals for choosing a government, for running the functioning or running government. ये वर्ड जरूरत में आया. ओके किड्स, समझ गए हो ना? सरकार जिसे आप कहते हो, उसे चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? कुछ पर्टिकुलर फिक्स पोस्ट. उसके लिए आपको एबल पर्सन चाहिए. तो हु चूज बाय पीपल, गवर्नमेंट इज़ रन बाय पीपल, बट एबल लीडरशिप चाहिए यहाँ पे. सो वो एबल लीडरशिप किससे मिलती है? हमें यहाँ पर देखेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, तो एवरीवन इज़ इक्वल, बट सुपर पावर कौन होगा? जिसे कुछ थोड़ा नॉलेज हो, इंटेलिजेंट हो, उसे हमने चुना. और किस प्रोसेस से? इलेक्शन प्रोसेस. व्हाट इज़ इलेक्शन प्रोसेस? इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया. गैप बिटवीन इलेक्शंस आर हेल्ड इन पीरियोडिक इंटरवल्स जस्ट आफ्टर. इन डेमोक्रेटिक जस्ट 5 years after, 5 years later. Gap between each election differ from country to country. ओके, डिविज़न्स जहाँ पर आप वोट देने जाते हैं वो एक फिक्स एरियाज़ या उस जगह को कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है. दीज आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज. द स्टेट इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट डिवीज़न कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड सेंट्रल लेजिस्लेटर एंड लोक सभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट असेंबली. दीज आर चूजन बाय इलेक्शन. लोकसभा और जितने दोनों इलेक्शन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों तरह के इलेक्शन होते हैं, किससे होंगे? वो इलेक्शन प्रोसेस से, और चूज़ किए जाएंगे इलेक्शन असेंबली से. पहले एक इलेक्शन कमीशन बनाया गया. रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन क्या है? कमिश्नर उसका हेड होगा, वही सारे मैनेजमेंट देखेगा, अरेंजमेंट्स देखेगा. बेटा ओके, क्लियर? कोई भी इलेक्शन प्रोसेस है इंडिया में, उसे करवाने के लिए सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर बिठाया जाएगा और वो ही उसको वोटिंग प्रोसेस से करेगा. सो इट हैज़ ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 other इलेक्शन कमिश्नर हु प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय इलेक्शन to the Lok Sabha and the state legislature are under the control of supervision of the election commission. Election commission announces the date of the election and makes the voters list. It also frame a code of conduct for the candidate and political parties, makes rule. Okay, Election Commission of India introduced the election photo identity card. This is EPIC, election photo identity card. All the machinery needed for a free and fair election is provided by the Election Commission. EVM nowadays processes, पहले एक बैलेट पेपर होता था, उस पे जाकर के इलेक्शन प्रोसेस में आपको स्टैंप लगानी होती थी पार्टी का देख के, लेकिन अब क्या था, EVM मशीन्स आर देयर. लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो सबसे पहले आपको एक स्लिप देगा, एक टिकट देगा. वो टिकट अगर आप लेते हो तब आपको तब आपको इलेक्शन के लिए टिकट मिलती है, अगर आप कैंडिडेट चुन लिए जाते हो तो. प्रोसेस ऑफ इलेक्शन नंबर 1, this process is conducted and supervised by Election Commission. Okay, who is the head of Election Commission? Election Commissioner. And nomination papers and their election campaign, voter list is made. The official list, names of all qualified voter, एक वोटर लिस्ट है, उसमें सभी क्वालिफाइड जिन्होंने अपना नेम दिया उनको नेम नॉमिनेट कर दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली उनको नेम को लिख के, this list is known as voter list and it is also known as the electoral roll. It does not discriminate on the basis of caste and religion, gender etc. कुछ नहीं है, यानी सभी को मिल सकती है वो टिकट वोटर लिस्ट वाली. उसमें कोई ये नहीं है कि कोई एज देखी जाएगी या कुछ और देखते हैं, नथिंग, सबके लिए सेम है. इलेक्शन कमीशन देन स्टार्ट अरेंजमेंट लाइक इशूइंग इलेक्शन सिंबल, कौन सी पार्टी को कौन सा इलेक्शन सिंबल देना है, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स, प्रिंटिंग ऑफ बैलेट पेपर, ये सब मैनेजमेंट कौन देखता है? इलेक्शन कमिश्नर. एंड पोलिंग बूथ अपॉइंट करना, किसका कहाँ अपॉइंटमेंट है ऑफिशियल की, ये सारे काम
कमिश्नर देखते हैं। ओके बेटा। नाउ नोटिफिकेशन, इलेक्शन कमीशन इशू द नोटिफिकेशन फॉर ए पर्टिकुलर इलेक्शन एंड नॉमिनेशन, पेपर विड्रॉल, कैंडिडेट स्क्रूटनी ऑफ पेपर, वोटिंग डेट्स, काउंटिंग डेट्स, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट्स एंड पेटिशन डेट, ये सारी की सारी डेट्स भी फिक्स की जाती हैं नोटिफिकेशन के रूप में। ये सारा काम भी इलेक्शन कमीशन करता है। कौन सी डेट को इलेक्शन होंगे, किस एरिया में होंगे, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी इलाका जो चुना गया स्टेट वहाँ होंगे, किस तरीके से होंगे, किसका लिस्ट में नेम, कौन सी डेट को शुरू होंगे और कब वोटिंग काउंटिंग होगी। नाउ सिलेक्शन, इट पार्टीज बिगिन टू प्रोसेस टू सेलेक्ट देयर कैंडिडेट। Individual announce their candidate from various constituency. So, scrutiny of paper. Nomination papers are scrutinized by the election commission and it found correct are accepted, otherwise they are rejected. Withdrawal, the candidate whose nomination paper are accepted are given chance to withdraw their name up to a certain date. अगर किसी ने अपना कैंडिडेट अगर एक्सेप्ट करा है, उसे अपना नेम बाहर निकालना है तो वो ये प्रोसेस भी कर सकता है, लेकिन एक फिक्स डेट होती है, उस नेम तक वो अपनी नेम को वापस ले सकता है। नाउ व्हाट इज़ इलेक्शन मैनिफेस्टो? इट्स अ प्रोसेस डॉक्यूमेंट इशूड बाय एवरी पार्टी बिफोर द इलेक्शन. इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ द पार्टी कंसर्न, commitment and program of the political party which they promise to implement in the event of booth elected. यानी कुछ कमिटमेंट किए जाते हैं कि ये चीज़ें हम पूरी करनी है, हमें ये हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस है, हम इनको फॉलो करेंगे और उसके बाद ही वो आगे उसे प्रोसेस में लिया जाता है, यानी उसे माना जाता है, नहीं तो उसका नाम वापस दे दिया जाता है। And polling booth, on the scheduled date the voter reach their respective polling booth and cast their vote. The voting is a secret process that nobody knows who had voted for whom. अंदर जाना है, EVM मशीन है, अर्लियर बैलेट पेपर होते थे, छुपा कर होता था, अब EVM मशीन होती है, उसे धीरे से जाकर प्रेस करो और उसके अंदर आप अपना उसको देख लो। ओके। इलेक्शन नाउ petition. Candidate is not satisfied with the process of election of poll overcome, given a chance to file an election petition before an authorized officer up to a certain date. Now, what are the main thing? Counting of voters and declaration of result. कैसे होता है? Voters counted under heavy police arrangement. Every party member present there. Okay. कोई भी डाउट हो डिसीजन मेकिंग में, हर पार्टी का एक एक मेंबर वहाँ पर असेंबल होता है और पुलिस भी वहाँ पर होती है। आफ्टर ऑल द वोट्स हैव बीन काउंटेड, कैंडिडेट हु गेट्स हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स डिक्लेयर्ड इलेक्टेड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर. This was the election system. Now different party system we will discuss in our next topic. Bye. Have a nice day.